آج کی ویڈیو کے اندر آپ سیکھنے والے ہیں سورۃ الواقعہ کا تیسرا رکوع آیت نمبر 74 سے لفظ با لفظ درست تلفظات کے ساتھ۔ یہ سورت وظائف کے حوالے سے کتنی طاقت رکھتی ہے یہ آپ خوب جانتے ہیں، تو اس لیے اس کا ٹھیک کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کو درست کر کے پڑھنا سیکھیں، ورنہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے تمام وظائف الٹے ہو رہے ہوں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم۔ فلا لام کے اوپر دو الف مدہ ہے، اس کو دو الف کے برابر تک لمبا کرتے رہیں گے اور یہاں پہ قلقلہ کرنا ہے آپ نے۔ اقسم، اقسم ایسے نہیں کرنا، اقسم بمواقع النجوم۔ واو پڑھتے ہوئے آپ کے ہونٹ گولائی شکل میں آنے چاہیے اور قاف کو گلے سے ادا کرنا ہے، عین یہ بھی گلے سے ادا ہوگا اور عین کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے آپ نے غننے کا خاص دھیان رکھنا ہے، جیسا کہ بمواقع النجوم۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ، یہاں پہ اکثر میں نے دیکھا ہے غلطی ہو رہی ہوتی ہے، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ لَقَسَمٌ لَوْ پڑھنے سے آپ غلط پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ لَقَسَمٌ لَوْ، یہاں پہ غنہ بھی کرنا ہے آپ نے، وَإِنَّهُ۔ یہاں پہ اکثر بہت سارے لوگ اس کو وَإِنَّهُ نون کو لمبا کر دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے، زبر کی غلطی ہے، اس لیے اس کو لمبا نہیں کر سکتے۔ کیا پڑھیں گے؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ یہاں پہ بھی اکثر ایک غلطی میں نے دیکھی ہے، تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، نا اس نون کو لمبا کر دیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ نون کے اوپر زبر ہے، اس لیے ایک زبر والا لفظ کبھی بھی لمبا نہیں ہوگا۔ عظیم، عین گلے سے ادا کریں گے اور زوا لکھا ہوا ہے، تو ذرا غور سے دیکھیں، زوا پڑھتے ہوئے آپ کے ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ عظیم ایسے پڑھیں گے۔ انہو یہاں پہ غنہ کریں گے، انہو، انہو نون کو لمبا نہیں کرنا ورنہ یہ بہت بڑی غلطی بن جائے گی۔ لقرآن کریم، لاقور قاف گلے سے ادا ہوگا اور را موٹا پر کر کے پڑھیں گے، یہاں پہ غنہ کریں گے۔ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، بمک یہاں پہ غنہ کریں گے، فی کتاب مکنون۔ یہاں پہ اکثر بہت سارے لوگوں کی کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ لام کے اوپر شد آ چکا ہے، اب وہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں انہوں نے کیسے پڑھنا ہے، کیونکہ پیچھے وقف کر دیا تو آگے پڑھنے کے لیے وہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ اس کو پڑھیں گے لا یمسہ، یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اگر وقف کیا پیچھے مکنون پہ تو آگے لا یمسہ، آگے الگ سے آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ ایک ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بات اور بھی ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ وضو کے بنا آپ قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے، وضو کر کے ہی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ نے الا المطہر تو پڑھنا ہے، متہا تا نہیں لگانا ورنہ یہ لفظ کی غلطی ہوگی، تو کی جگہ آپ تا ایڈ کر دیں گے تو ترجمہ بدل جائے گا، تو پھر دیکھیں قرآن پاک صحیح والا آپ نہیں پڑھیں گے، پھر آپ الٹا پڑھ رہے ہوں گے۔ ان چیزوں کا خاص دھیان رکھیں۔ تنزیل من رب العالمین، تنزیل زا سختی سے ادا کریں گے۔ اور یہاں پہ ایک غلطی بھی میں نے بڑی دیکھی ہے، تنزیلہم پڑھا جاتا ہے، تنزیلہم پڑھنا غلط ہوگا، زا کو کھینچیں گے یا کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے، اور لام کو میم کے ساتھ ملانے سے غنہ بھی کرنا ہوگا ہمیں ہر حال میں، اور پھر آگے میم کو را کے ساتھ ملانا، یہ جزم والا نون چھوڑ دیں گے، پھر را کو با کے ساتھ ملاتے ہوئے ادھر والے لام کے ساتھ ہم ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور عین کو گلے سے ادا کریں گے، عالمین نہیں کرنا اس کو، عالمین۔ ہم پیچھے آتے ہیں، پوری آیت کو سن لیں۔ تنزیل من رب العالمین، افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ افا بھی ہا موٹا ہا پڑھیں گے، زال کو نرمی سے ادا کریں گے، زل زا کی جگہ سے ادا نہیں کرنا ورنہ آپ زا لگا دیں گے، زال لکھا ہوا ہے، زال پڑھتے ہوئے آپ زبان کی نوک جو ہے وہ دانتوں کے نیچے لائیں گے تو نرمی سے ادا ہو جائے گا، زل۔
हदीसी, हा बारीक पढ़ेंगे, हदीसी, मोटा वाला हा नहीं पढ़ना आपने, हदीसी, अंतुम मुदहिनून, तुम यहाँ पे गुना भी करना है, मुद यहाँ पे कलकला भी करना है, मुद ही नून, ऐसे नहीं करना, मुद ही नून ऐसे पढ़ना है आपने। अफ़बिहाज़ल हदीसी अंतुम मुदहिनून वतजअलून, वतज यहाँ पे भी कलकला है, वतज ऐसे नहीं करना, वतजअलून रिज़्क़कुम, रिज़ जा सख्ती से अदा करेंगे, क़कुम क़ाफ गले से अदा होगा, और अगर आप रिज़्क़कुम पढ़ते रहे तो फिर आप ये लफ्ज़ी गलती बहुत बड़ी करते रहेंगे, तो फिर ये चलता रहेगा, इसलिए कोशिश करें इसको सीखने की। अन्नकुम गुना करेंगे तो कज़्ज़िबून, पूरी आयत को सुन लें, वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। अगली आयत पे चलते हैं, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, यहाँ पे भी अक्सर एक गलती हो रही होती है, इज़ा बालागातिल, बालागातिल नहीं करना, बालागातिल ये पढ़ना है, हुल बारीक हा के साथ पढ़ेंगे, हुल्कुम नहीं करना, हुल्कुम, व अंतुम, वाव पढ़ते हुए आपके होंठ गोल होने चाहिए, हीना इज़िन तंज़ुरून, ही बारीक हा पढ़ेंगे, ही ना इज़िन मोटा वाला हा नहीं ऐड करना आपने, जिन यहाँ पे गुना करेंगे, तंजुरून, ज़ुआ पढ़ते हुए आपके होंठ गुलाई शक्ल में आ जाने चाहिए, अगर आप तंजुरून पढ़ते हैं तो फिर आप जा लगा देंगे जो कि लफ्ज़ की गलती होगी, तंजुरून, वनहनु अक़रबु, वनहनु अक़रबु ऐसे नहीं करना, और यहाँ एक और गलती मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, वनहनु अक़रबु ऐसे हो रहा होता है, ऐसे नहीं करना आपने, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, वाला वाव पढ़ते हुए होंठ गोल होने चाहिए, किल्ला, अब ये जज़म वाला नून छोड़ देंगे, काफ को लाम के साथ मिलाते हुए लंबा करेंगे क्योंकि लाम के अंदर अलिफ है, तुबसिरून कलकला करेंगे, तुबसिरून ऐसे नहीं करना आपने, और स्वाद का भी खास ध्यान रखना है, तुबसिरून ऐसे पढ़ना है। एक दफ़ा पूरी आयत को फिर से सुन लें, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, गैर पढ़ेंगे, गैरा मदीनीन ऐसे नहीं करते, मैंने बड़े सारे लोगों को इस लहजे के अंदर पढ़ते हुए सुना है, क्या पढ़ते हैं, इन कुंतुम गैरा मदीनीन ऐसे नहीं कर रहा आपने, इन कुंतुम गैरा मदीनीन। अगली आयत पे चलते हैं, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, सादिकीन नहीं करना आपने, सादिकीन, फ़अम्मा इसको गुन्ना कहते हैं, ठीक है, इन काना मिनल मुक़र्रबीन, यहाँ पे भी एक गलती मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, वो क्या, इनका ना मिनल, इनका ना नून को नहीं खींचना, मैं हर बार ज़बर वाले लफ्ज़ पे ज़रूरी समझाना समझता हूँ क्योंकि यही गलती सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें, ज़बर ज़ेर की गलती से इज्तनाब करें। फ़अम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन, आगे पढ़ेंगे, फ़रौहु व रैहान, फ़रौ रा को मोटा और पुर करके पढ़ेंगे, और आगे हुम्वा नहीं करना, हुम्वा रैहान बारीक हा पढ़ेंगे, और यहाँ पे वक़फ़ कर लें, और अगर वक़फ़ नहीं करना चाहते तो फिर आप इस सूरत में पढ़ सकते हैं, नून को आगे वाव के साथ मिलाना है, और फिर यहाँ पे गुन्ना भी करना है, नून और वाव पे गुन्ना भी करना है आपने, और फिर आगे जीम और नून पे भी गुन्ना करना है। और यहाँ पे एक मिस्टेक भी होती है, वो क्या होती है, पहले मैं आयत को पढ़ के सुना लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं। फ़रौहुन व रैहानुन व जन्नतु नईम, यहाँ पे कौन सी गलती अक्सर हो रही होती है,
वजन्नातु नईम, वजन्ना नून को लंबा कर दिया जाता है जो कि नहीं कर सकते। अगर नून को ठीक पढ़ लिया जाए तो फिर ता को खींच देते हैं, जैसा कि वजन्नातु नईम ऐसे करते हैं, ये गलत है। ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा ज़ाती तजर्बा रहा है, यही चीज़ें मैं सबसे ज़्यादा हर रोज़ डेली बेसिस पे मैं सुनता हूँ, देखता हूँ। तो मैं वीडियो के ज़रिए ये पैगाम आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि देखें, जो मेरे सामने बैठकर लोग ऐसा पढ़ते हैं तो जो घरों में पढ़ रहे हैं फिर वो तो बहुत ही ज़्यादा कर रहे होंगे, इसलिए मैं उनकी तवज्जो भी इन चीज़ों की तरफ दिलाना चाहता हूँ और वो भी इन पे ख़ास तवज्जो दें और कुरान पाक को ठीक करके पढ़ें। फिर आप अपनी ज़िंदगी में, घर में, कारोबार में बरकतें देखिएगा और फिर अपनी दुआओं की कबूलियत का वक्त देखिएगा कि किस तरह आप कामयाबियों की तरफ जाते हैं। पूरी आयत को फिर से सुन लें। फ़रौहुन व रैहानुन व जन्नतु नईम व अम्मा, गुना भी करेंगे और मीम के साथ दो अल्फी मद्दा भी है। व अम्मा इन काना मिन अस्हाबिल यमीन, काना मिन अस्हा, अस स्वाद पढ़ेंगे, हा बारीक हा पढ़ेंगे, इसको असहा नहीं करना वरना ये गलत हो जाएगा। फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन, अस्हाबिल यमीन व अम्मा, होना भी करेंगे मीम के साथ, लंबा भी करेंगे, जो कि हम पिछली दो आयत के अंदर पढ़ चुके हैं इनको तकरीबन। व अम्मा इन काना मिनल मुकज़्ज़िबीन, ये लफ्ज़ आगे जा रहा है, अगर आपका सांस टूट गया तो आप मुकज़्ज़िबीन वक़फ़ कर दिया, अब आगे कैसे पढ़ना है ये चीज़ सुने। मिनल मुकज़्ज़िबीन दौद के सामने अलिफ के ऊपर चार अल्फी मद्दा है, इसको लंबा करते हुए आपने लाम के साथ मिलाना है, सांस को टूटने नहीं देना, जैसा कि मिनल मुकज़्ज़िबीन अद्दल्लीन ऐसे पढ़ना है आपने। फनुज़ुलुम मिन, यहाँ पे गुन्ना करेंगे और ये ध्यान रखना है, ये देखें लाम के ऊपर तो गुन्ना हो रहा है लेकिन मीम के ऊपर करना है या नहीं करना ये आपको नहीं इल्म है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये वो चीज़ें जो आपको कोई नहीं बताएगा। और यहाँ पे आपने कैसे पढ़ना है, फनुज़ुलुम, यहाँ पे गुन्ना कर लिया, आगे मिन हमीम, यहाँ पे मिन ऐसे नहीं करना, यहाँ पे गुन्ना नहीं हो सकता क्योंकि आगे हरूफ हल्की में से हा आ चुका है, इसलिए जहाँ भी हरूफ हल्की 6 हैं वो जहाँ भी आएंगे उनसे पहले किसी भी लफ्ज़ के ऊपर नून है या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश है तो उनके ऊपर गुन्ना नहीं होगा, ये आपने ख़ास ध्यान रखना है कानून का। फनुज़ुलुम मिन हमीम, यहाँ पे वक़फ़ कर दें, फिर वाऊ को अलग से आप पढ़ लें। वतस्लियतु जहीम, वतस स्वाद पढ़ेंगे, वतस्लियतु ऐसे नहीं करना, अक्सर लोग यहाँ पे सीन पढ़ जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, या तो या को लंबा कर देते हैं या ता को खींच देते हैं, जो कि गलत है दोनों सूरतों में। वतस्लियतु जहीम, जहीम मोटा नहीं पढ़ना, बारीक, जहीम। इन हाज़ा, इन यहाँ पे गुना करेंगे, हक़्क़ुल यकीन, हक़्क़ुल बारीक हा पढ़ेंगे, यकीन, क़ाफ यकीन नहीं करना इसको, यकीन। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, फसब्बिह बारीक हा पढ़ेंगे, यहाँ पे भी मैंने अक्सर एक गलती देखी है, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम ऐसे पढ़ा जाता है, फसब्बिह नहीं करना, बिस्मि नहीं करना इसको, रब्बिकल नहीं करना, रब्बिकल क्या पढ़ेंगे, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। अब हम एक दफ़ा फिर से वापस आते हैं, आयत बाय आयत आप पढ़ें ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा हो जाए, कुरान पाक को सीखने में मज़ीद मदद मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतह्हरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन अफ़बिहाज़ल हदीसी अंतुम मुदहिनून।
वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम वअन्तुम हीनइज़िन तंज़ुरून वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन फ़अम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फ़रौहुन व रैहानुन व जन्नतु नईम व अम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन फ़सलामुन लक मिन अस्हाबिल यमीन व अम्मा इन कान मिनल मुकज़्ज़िबीन अद्दल्लीन फ़नुज़ुलुम मिन हमीमिन व तस्लियतु जहीम इन्न हाज़ा लहुवा हक़्क़ुल यक़ीन फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर आपने सूरतुल वाक़िआती का तीसरा और आखिरी रुकू आपने सीखा। आपने इसमें जितनी भी आपकी मिस्टेक गलतियाँ होंगी वो दुरुस्त कर ली होंगी, नहीं तो वीडियो को फिर से रिवर्स करें और फिर से सीखें। और अगर आप सूरह यासीन सीखना चाहते हैं, सूरह मुल्क सीखना चाहते हैं या सूरह मुज़म्मल सीखना चाहते हैं, मेरे इसी चैनल के ऊपर वो वीडियोस पड़ी हैं, आप वो भी जाकर सीख सकते हैं। मिलते हैं कल की अगली एक नई सूरत के अंदर, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।